So we are solving Maths R.D. Sharma, chapter number 51, line and plane in the space, page number 51.47, question number 16. चलिए शुरू करते हैं. 16 नहीं 17. Question number 17, which is a star problem according to me. So let's start. The vector equation of the line of intersection of the planes. दो planes दिए हैं यहाँ पर. R bar dot I 2j equal I plus 2j plus 3k is equal to 0. This is the first plane. R bar dot 3i 2j k. R bar dot 3i plus 2j plus k is equal to 0. ये दो planes है. The vector equation of the line of intersection of the planes. ये दो planes अगर intersect कर रहे हैं, दोनों equation है. बताइए. R bar dot n1 bar is equal to 0. R bar dot n2 bar is equal to 0. ऐसे दो planes है. तो ये दोनों planes का line of intersection चाहिए. चलिए ये अगर दो planes है, तो इसका जो line of intersection होगा, वो ये है ना line of intersection. ठीक है. पहले प्लेन का जो नॉर्मल है इसे मैं कहूँगा n1 बार, जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है. दूसरे प्लेन का है n2 बार. तो दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा n1 बार क्रॉस n2 बार, which is parallel to this line of intersection. So the line of intersection is simply found out by n1 bar cross n2 bar is equal to I j k 1 2 3 3 2 1. That is equal to I into minus j into plus k into 2 minus 6 is minus 4, 1 minus 9 is minus 8, and 2 minus 6 is minus 4. So this is minus 4i plus 8j minus 4k. ठीक है, ये होगा n1. The vector equation of the line. Now यहाँ पर मुझे दोनों जो प्लेन्स है, ये दोनों प्लेन्स पास थ्रू ओरिजिन, बोथ द प्लेन्स. क्योंकि अगर मैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, if I substitute the coordinates of the origin, so it will satisfy. So both the planes pass through origin. Therefore this line will also pass through the origin. This line is also passing through the origin. समझे क्या? Isn't it? तो ये होगा मेरा b बार एक्चुअली. इस लाइन का इक्वेशन मुझे अगर चाहिए, this is the line, the vector equation of this line I am looking for. ठीक है? तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूंगा r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार. तो ये होगा मेरा b बार एंड a बार इज एक्चुअली 0. तो इक्वेशन आएगा r बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स माइनस 4i प्लस 8j माइनस 4k. ऐसा बनेगा. अब देखिए इसको अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से मैं I'll take minus 4 down. So this will become minus 4 lambda times I minus 2j plus k. Minus 4 lambda को नया वैल्यू देगा lambda dash या lambda 1. So this is the equation of the line. And the option here is question number 17. The option is क्या है यहाँ पे? I minus 2j plus k. I minus 2j plus k. तो एक्चुअली डी इज द आंसर हियर, क्योंकि अगर बी आंसर देना है तो आई माइनस 2j प्लस के होना चाहिए, प्लस 3k नहीं होना चाहिए, प्लस के होना चाहिए. जो आंसर उन्होंने ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 17 का, उन्होंने बी दिया है, तो वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन में 3k दिया है. सो question number 18, star question. A straight line r bar is equal to a bar plus lambda b bar. A bar plus lambda b bar meets the plane r bar dot n bar is equal to 0 in p. R bar dot n bar is equal to 0 in p.
the position vector of P is the position vector of P is कैसे करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को कहीं मिल जाती है, इस P का पोजीशन वेक्टर मुझे चाहिए. They are asking what is the position vector of P. Actually P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z और उसका पोजीशन वेक्टर होता है r बार. ये इक्वेशन मुझे r बार के लिए ही सॉल्व करना है. I have to solve this equation for r bar. Very simple. समझे क्या? तो ये दोनों इक्वेशंस मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे. तो कुछ नहीं, यहाँ पर मैं r बार के लिए सब्स्टिट्यूट करूँगा. तो ये बन जाएगा a बार प्लस लैम्डा b बार डॉट n बार इज इक्वल टू. अब इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है उसमें p का पॉइंट बदलता जाएगा जैसे लैम्डा का वैल्यू. तो मुझे लैम्डा का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा. I have to find out what is the value of lambda here. I'll open this dot product. This will become a bar dot n bar plus lambda times a bar dot n bar is equal to 0, and therefore lambda is equal to ये उधर चला जाएगा minus a bar dot n bar upon b bar dot n bar. ये है लैम्डा का वैल्यू. ये लैम्डा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे r बार का पोजीशन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा. तो क्या बन जाएगा? This will become therefore position vector of P is given by r bar is equal to a bar plus lambda. Lambda की जगह पर आएगा minus a bar dot n bar upon b bar dot n bar into b bar. Well, this is the answer. This is the position vector of point P, and the option here is question number 18. C is the answer here. C is the option. Please check whether this is clear to you. थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का प्रॉब्लम था ये, अलग टाइप का था ये. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? 19 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 it says the vector equation of the plane passing through three non-collinear points having position vector a bar, b bar and c bar is given by. ये अपने को तो पता है कि ये प्लेन है, इसमें तीन पॉइंट्स दिए हैं, a बार, b बार एंड c बार. तो इसका ये एक होगा, these are the two vectors a b bar and a c bar. नॉर्मल आएगा इसका जो वो आएगा n बार इज इक्वल टू a b बार क्रॉस a c बार, a b बार क्रॉस a c बार. और इसका इक्वेशन आएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार. लेकिन n बार इज दिस. व्हाट इज n बार हियर? n बार इज इक्वल टू b बार माइनस a बार क्रॉस c बार माइनस a बार. अब चाहिए तो इसको ओपन कर सकते हैं. और ओपन दिस, ये बन जाएगा b बार क्रॉस c बार. n बार इज इक्वल टू b बार क्रॉस c बार माइनस b बार क्रॉस a बार माइनस a बार क्रॉस c बार. और ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा प्लस a बार क्रॉस c बार, वो तो जीरो. अब इसको मैं उल्टा कर दूं तो माइनस हो जाएगा. सो व्हाट इज n बार इज बेसिकली b बार प्लस c बार प्लस a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस a बार. दिस इज n बार. और इस n बार को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. लेकिन सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पर जैसे हमको दिया गया है उस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा r बार डॉट a बार प्लस b बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस c बार प्लस a बार is equal to a bar dot a bar plus b bar plus b bar plus c bar plus c bar plus a bar. Now if I try to open this bracket, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि a बार रिपीट हो रहा है
ये जीरो नहीं होगा, लेकिन ये भी जीरो होगा क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा है। सो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा मेरा आंसर जो कि आर बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार is equal to box product of A bar B bar C bar. Box product of A bar B bar C bar. And that is the answer. Please check whether this is clear to all. तो ऐसा कोई आंसर नहीं, सी ऑप्शन उससे मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है. सो नन ऑफ दिस डी इज द आंसर हियर. प्लीज चेक whether this is clear to all. Question number 20. Star question, according to me. The length of the perpendicular from the origin to the plane passing through non-collinear points A bar, B bar, C bar is the plane passing through these three non-collinear points. मतलब इसी टाइप का था जो अभी plane. The plane passing through A bar, B, B बार, C बार. ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए बी बार और ए सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो होगा एन बार विच इज इक्वल टू ए बी बार क्रॉस ए सी बार, जो अभी अभी हमने देखा था. इट्स द सेम थिंग. तो अभी जो हमने डिराइव किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इट वाज लाइक आर बार डॉट A bar plus B bar plus B bar plus C bar plus A bar is equal to box ABC. अगर आपको याद होगा, सही है ना? अभी अभी हमने डिराइव किया था. यस और नो? यस और नो? हेलो. अब अगर अब यहाँ पर इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा, this will be some vector here. This is some vector. Let me call this vector as a what is it? N bar. मैं इसको n bar बोलता हूँ. R bar dot n bar. ये है. ठीक है? This is R bar dot n bar is equal to this. अगर मैं इसको ट्रांसफर करूँगा तो ये आएगा माइनस बॉक्स ABC is equal to 0. अब मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन. अगर मैं आर बार की जगह पर लिखूंगा, आर बार इज नथिंग बट एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज डॉटेड विद दिस एन बार. ठीक है, और इसे मैं बोल दूंगा डी. दिस इज लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड वाई, और या तो फिर कैपिटल ए एक्स, सॉरी कैपिटल ए आई प्लस और या फिर N1 I प्लस N2 J प्लस N3 K. समझो कि ऐसा कुछ है माइनस डी इज इक्वल टू 0. तो व्हेन आई ओपन दिस ब्रैकेट दिस टोटली गिव मी N1x. डॉट प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो N1x प्लस N2y प्लस N3z माइनस डी इज इक्वल टू 0, which is very much looking like ax plus by plus cz plus d is equal to 0. ये टाइप का है. और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सही है ना? इज इट? इसका स्क्वायर रूट मतलब इट इज मॉड्यूलस ऑफ n1 दैट इज इक्वल टू, नाउ डी इज नथिंग बट दिस बॉक्स प्रोडक्ट. डी इज नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार. और ये मतलब इसका मॉड्यूलस मतलब इसका मॉड्यूलस है. ये इस मॉड्यूलस ऑफ n मतलब मॉड्यूलस ऑफ दिस. सो दिस इज एक्चुअली डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस b बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस c बार प्लस a बार. इसका मॉड्यूलस. सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. द आंसर इज A. Please check whether this is clear to all. Please check whether this is clear to all. समझ में आ गया ये सबको? चेक करिए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दिया है.
the equation of the plane containing the line, the equation of the plane containing some line का equation क्या है? x minus x1 upon l, x minus x1 upon l, y minus y1 upon l, z minus z1 upon l. This line is contained by this plane. मतलब this line is passing through some point. The coordinates of this point are given by a x1 y1 z1, and this line is having direction cosines बोलो या direction ratios बोलो l/m. मतलब this line is parallel to some vector here. Vector, I can call this vector as b bar is equal to li plus mg plus lp. ऐसा है ये वेक्टर, ठीक है. Okay, so I want the equation of this plane. Equation of the plane के लिए मुझे उसका नॉर्मल चाहिए. Let me say n bar is equal to ai plus bj plus c. तो मुझे अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, प्लेन का इक्वेशन के लिए मुझे क्या जरूरी होता है? r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. तो a bar तो मुझे पता है, this is a bar. What is that? x1i plus y1j plus z1k. लेकिन अब मुझे चाहिए n bar. n bar मतलब मुझे उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए abc. I want the direction ratios of this. Is this clear? Any doubts so far? The equation of the plane containing this is. कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी हम लोग ये? अच्छा, उन्होंने इक्वेशन भी दे दिया है. द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ये प्लेन का इक्वेशन है. तो इसका मतलब है a b c these are the direction ratios of the normal. ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल है. Where? ठीक है. तो इसका मतलब है हमको इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी दिया है a into x minus x1 b into y minus 1 c into z minus z1. अब देखिए यहाँ पर a b c क्या होंगे? a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस नॉर्मल. तो ये नॉर्मल इस प्लेन को, इसका मतलब है इस वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होंगे. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है b bar dot n bar is equal to 0. इसका मतलब है al plus bl plus cn is equal to 0. al plus bl plus cn is equal to 0. So this is what they are saying. ये इक्वेशन होगा प्लेन का if there are 4 options given और इसमें से ये है option B and that is the answer. Please check whether this is clear to you all. Please check. Hello. Question number 22. The shortest distance between the lines. Skew lines. Shortest distance between the skew lines. What is the distance between the skew lines? Distance between skew lines का फॉर्मूला क्या है? आपको याद है? Can you please tell me? Distance between skew lines. इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, ऐसा एक लाइन होता है, दूसरा एक लाइन होता है, और ये लाइंस are given by it is passing through a1 and parallel to vector b1 bar, and this is passing through b a2 and it is parallel to b2 bar. So the shortest distance between them is am or pq is equal to shortest distance d is equal to, the formula says modulus of a2 bar minus a1 bar dot b1 bar cross b2 bar divided by modulus of b1 bar cross b2 bar. ये फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस का. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अभी हमको यूज करना है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to 7 minus 3 upon 4. 7 minus 3 upon 4. This is the first line.
and the second line is given by 2 4 5 3 4 5. चलिए ये है दो लाइन्स। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा a1 बार, दिस विल गिव मी a1 बार, बराबर है क्या, i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ से मिलेगा b1 बार 2i प्लस 3j प्लस 4k। सिमिलरली यहाँ से मुझे मिल जाएगा a2 बार इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, और यहाँ से मुझे मिलेगा b2 बार 3i प्लस 4j प्लस 5k। पहले मुझे b1 बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फाइंड आउट व्हाट इज b1 बार प्लस b2 इज इक्वल टू i j k 2 3 4 3 4 5 i minus j plus k 15 minus 20 15 minus 16 minus 1 10 minus 12 minus 2 8 minus 9 minus 1, so this is minus I plus 2j minus k. This is b1 bar cross b2 bar. So what is modulus of b1 bar cross b2 bar? It is equal to square root of 1 plus 4 plus 1 root 6. समझे? अब मुझे चाहिए डॉट प्रोडक्ट, तो इसका न्यूमरेटर जो आएगा, न्यूमरेटर के लिए मुझे पहले a2 बार माइनस a1 बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज a2 बार माइनस a1 बार? 2 minus 1, that is I, 4 minus 2 plus 2j, and 5 minus 3, that is 2k. So the numerator is found out by 1 2 2 b1 बार b2 बार। नहीं तो इसका डॉट प्रोडक्ट ही मैं ले लेता हूँ सीधा। तो यहाँ पर a2 बार माइनस a1 बार डॉटेड विद b1 बार डॉट b2 बार, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा। दिस विल गिव मी 1 into minus 1 is minus 1, 2 to the 4 and 2 1 the 2, so that will give me 1. So what is the perpendicular distance between the two skew lines? It is equal to modulus of numerator is 1 and the denominator is root 6, so this is 1 upon root 6 is the answer. Perpendicular distance between these two skew lines is 1 upon root 6, A is the answer. Is this clear to you all? Please check. Question number 23. The value of k so that the lines this may be perpendicular. अगर line perpendicular है तो उसके जो normals होते हैं, lines are given here. Two lines are perpendicular. If n1 bar dot n2 bar is equal to 0, उसके जो direction ratios curve vectors, isn't it? या तो फिर मैं इसको बोलूँगा कि this line, पहला जो line x minus 1 upon minus 3, x minus 1 upon minus 3 is equal to y minus 2 upon 2k is equal to z minus 3 upon 2. ये पहला लाइन है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज है -3 2k and 2. जो दूसरा लाइन है वो दिया है x minus 1 upon 3k is equal to y minus 1 upon 1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, ये लिखने में इसका ज़्यादा टाइम जा रहा है। z minus 6 upon minus 1, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 3k 1 and -5. तो अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसके जो डॉट प्रोडक्ट आएगा डायरेक्शन रेशियोज का वो 0 आएगा, मतलब -3 into 3k plus 2k into 1 plus 2 into -5 is equal to 0. So this is -9k plus 2k is equal to 10, -7k is equal to 10 and k is equal to -10 upon 7. That is the value of k. So B is the answer there. Very simple question. तो ये आपके लिए छोड़ देना चाहिए था, कोई नहीं. Take the screenshot please. Question number 24. The direction ratios of a normal to the plane passing through
3 पॉइंट्स दिए हैं पासिंग थ्रू 0 0 1 0 1 2 and 1 2 3, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू, तो इसको मैं पॉइंट्स डिरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर प्रोपोर्शनल, तो ये पॉइंट्स होंगे ए बी एंड सी, दिस इज ए बी बार ए सी बार, हमारा जो नॉर्मल होगा वो होगा ए बी बार क्रॉस ए सी बार, तो डिरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल प्रोपोर्शनल, नॉर्मल के डिरेक्शन रेशियोज, तो पहले मैं ए बी बार लिखूंगा, व्हाट इज ए बी बार माइनस ए बार 0 आई प्लस 1 जे प्लस के, ए सी बार क्या होगा सी बार माइनस ए बार, सो आई प्लस 2 जे प्लस 2 के, therefore what is n bar is equal to a b bar cross a c bar, मतलब I j k 0 1 1 1 2 2, so that will be I into 2 minus 2 0 minus j into 0 minus 1, that is minus 1, plus k into 0 minus 1, that is minus 1, so this is 0 I plus j minus k. So the direction ratios of n bar are proportional to 0 1 and minus 1. Direction ratios are proportional to 0 1 and minus 1. A is the answer. Please check whether this is clear to all. I'll go to question number 25. Question number 25 is a star problem. Check here. A variable plane is at a distance k from the origin, okay, and meets the coordinate axis in ABC. Then the locus of centroid of ABC is. Now before I go for this question, आप मुझे बताइए कि एक this is the x-axis, y-axis, this is the line which is making the intercepts a comma 0 and 0 comma b. So what is the equation of line by double intercept form? You remember double intercept form? Double intercept form. क्या होता है double intercept form? Equation of this line by double intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. I hope you remember this double intercept form of the equation of the line. Yes or no? चलो उसी प्रकार से स्पेस में समझो कि ये एक प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, so this is a triangular plane. Let us say its x-intercept is a0 0, y-intercept is b 0 b0, and z-intercept is c 0 0 c. ठीक है, तो इस प्लेन का भी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखा जा सकता है. इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म. कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म से उसका इक्वेशन आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म. इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस ओके? अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का समझो कि उसका जो सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड को हम बोलेंगे say m. Let m having the coordinates alpha, beta and gamma be the centroid of triangle ABC. Centroid of triangle ABC. तो मुझे इस सेंट्रॉइड का लोकस का इक्वेशन चाहिए. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रॉइड? लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC. सो मुझे इसका लोकस चाहिए. आई वांट द लोकस फॉर दिस. ठीक है, अब अगर ये सेंट्रॉइड है जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, तो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला क्या बोलेंगे आप लोग बताइए? बाय सेंट्रॉइड अल्फा इज इक्वल टू 0 a प्लस 0 प्लस 0, अल्फा इज इक्वल टू a प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3, मतलब अल्फा इज इक्वल टू a बाय 3, बीटा इज इक्वल टू b बाय 3 एंड गामा इज इक्वल टू c बाय 3. इज दैट ओके? Is that clear? Is that fine? Hello. बराबर है क्या? Isn't it?
सो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 3 अल्फा, b इज इक्वल टू 3 बीटा एंड c इज इक्वल टू 3 गामा। समझे? राइट? हेलो, समझे क्या? अब मुझे पता है कि दिस प्लेन इज एट ए डिस्टेंस k फ्रॉम द origin. The above plane is at a distance k from the origin. origin से वो k डिस्टेंस पर है. So origin से k डिस्टेंस पर है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द origin is equal to k. तो what is the formula for distance of the origin? It is nothing but ax plus by plus cz plus d. ऐसा होता है ना. So it will be actually, तो ये आएगा -1 मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज k. ये समझ में आएगा सबको? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का ये फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. समझे क्या? हेलो हेलो हेलो, सबको समझ में आ गया? सो यहाँ पे अब मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ. अब देखिए यहाँ पे दिस विल बी, मुझे इसका मॉड्यूलस साइन हटाने का है. आई वांट टू रिमूव दैट मॉड्यूलस साइन. तो मॉड्यूलस साइन हटाने के लिए मैं इसको स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग ऑफ द साइड. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर इज 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर plus 1 upon 9 beta square plus 1 upon 9 gamma square is equal to k square. रेसिप्रोकल ले लीजिए मैं इसका. तो दिस विल गिव मी व्हाट? दिस विल गिव मी 1 upon 9 में कॉमन ले लूंगा, 1 upon अल्फा स्क्वायर प्लस 1 upon बीटा स्क्वायर प्लस 1 upon गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon k स्क्वायर. 9 इधर चला जाएगा, 9 upon k स्क्वायर. सो इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन के स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस. लेकिन लोकस का इक्वेशन हम जो लिखते हैं हमेशा, लोकस का इक्वेशन हमेशा जो हम लिखते हैं वो एक्स वाई जेड में लिखते हैं. मतलब मुझे अगर एक अल्फा बीटा गामा का लोकस चाहिए तो अल्फा बीटा गामा की जगह पर एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा फाइनली. सो द इक्वेशन ऑफ लोकस इज गिवन बाय x रेज टू -2 प्लस y रेज टू -2 प्लस z रेज टू -2, इसको ऊपर भेजिए, इज इक्वल टू 9k रेज टू -2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू ऑल. दिस इज द क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन था. चेक इफ एनी डाउट्स आर देयर. क्वेश्चन नंबर 26. The Cartesian equation of the plane perpendicular to the line. लाइन का इक्वेशन दिया है यहाँ पे. लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन -1 एंड z माइनस 4 अपॉन 2. ऐसा इक्वेशन है लाइन का. सो आई वांट, दिस इज द लाइन. दिस लाइन is perpendicular to one plane and this plane is passing through origin also 0 0 0. So basically this is a bar is equal to 0i is 0j plus 0k. this is a bar. और यहाँ पर perpendicular to this line. अब लाइन की मुझे drs पता है. what are the drs of the line? 2 minus 1 2. तो यहाँ से मुझे नॉर्मल मिल जाएगा. नॉर्मल n bar is equal to 2i minus j plus 2k. अब उन्होंने वेक्टर इक्वेशन पूछा है, नो कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है. द कार्टेशियन इक्वेशन. तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आई यूज द फॉर्मूला r बार माइनस a बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0. बट a बार तो 0 ही है. सो इट इज सिंपली r बार इज xi प्लस yj प्लस zk इज डॉटेड विथ n बार 2i minus j plus 2k is equal to 0. So this will become 2x minus y plus 2z is equal to 0. Well, this is the Cartesian equation. It's very simple. The option C. You check whether this is clear to all. Question number 27. Question number 27.
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है यहाँ पे। इट्स अ स्टार क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 27। इट्स अ स्टार क्वेश्चन। Equation of the plane passing through the points this and this perpendicular to the plane that is. Equation of the plane passing through the points. तो यहाँ से यहाँ पे मुझे दो पॉइंट्स बताए गए हैं। This plane is passing through A and B. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 2, 1 and B 9, 3, 6. 9, 3, 6. And this plane is perpendicular to one more plane. This plane is perpendicular. So हमारा ये required plane है और ये given plane है, ठीक है? So perpendicular to the plane 2x 6y 6z minus 1. 2x 6y 6z minus 1 is equal to 0. ठीक है? इज अब देखिए जो गिवन प्लेन है वो उसका फॉर्मेट है ax plus by plus cz plus d is equal to 0. अगर ये गिवन प्लेन है तो उसके drs of the normal क्या होंगे? drs of normal, उसके drs of the normal are abc. मतलब इसके जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2, 6, 6. अब अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, if I want the equation of this, तो मुझे उसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो मुझे उसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? इक्वेशन ऑफ द प्लेन आई कैन फाइंड आउट बाय r bar dot n bar. r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. तो ये तो मेरे पास a bar है, लेकिन अब मुझे जरूरत है n bar की. n bar इज ये एक वेक्टर होगा जो कि इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, n bar. तो n bar के लिए मैं क्या करूंगा? तो मुझे यहाँ पर क्या क्या पता है? मुझे यहाँ पर इसका एक परपेंडिकुलर पता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? ये जो है इसको मैं बोलूंगा b1 bar, b2 bar. Call this as b2 bar. What is b2 bar is equal to? b2 bar is given plane का perpendicular, मतलब b2 bar is 2i. इसके डायरेक्शन रेशियो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1, 3 और 3 बन जाएंगे. So this is actually i plus 3j plus 3k, ऐसे हो जाएंगे. Similarly, I can find out the direction ratios of AB bar. AB bar is equal to position vector of B minus position vector of A. 9 minus 2 7i, 3 minus 2 plus j, 6 minus 1 plus 5d. अब देखिए AB बार एंड B2 बार, B2 बार को मैं ऐसा इधर प्लेस कर सकता हूँ या AB बार को उठा के मैं यहाँ पे ऐसा प्लेस कर दूंगा. AB बार को पैरेलली शिफ्ट किया मैंने ऐसे यहाँ पे. तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में मुझे n बार मिलेगा. n बार विल बी द n बार इज इक्वल टू क्या बनेगा? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB बार B2 बार क्रॉस AB बार. दिस विल गिव मी n बार. और एक बार n बार मिल गया तो मेरा काम हो गया. तो पहले मुझे n बार फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज n बार इज इक्वल टू? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B2 बार क्रॉस AB बार. चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं n बार. समझिए क्या? सो नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन इज फाउंड आउट बाय दिस. सो B2 बार I j k, B2 बार 1, 3, 3 and AB bar is 7, 1, 5. So this will become I minus j plus k. क्या आएगा यहाँ पर? 5 is a 15 minus 3, 12. 5 minus 21. 5 minus 21. 16 minus 16. 1 minus 21. Minus 20. So this is 12i plus 16j minus 20k. This is n bar. ठीक है? और अब मैं अगर मुझे n बार होगा ये, अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. अगर आप चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं या वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है. तो लेट अस टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस. दिस विल बिकम r bar dot n bar is 12i plus 16j
माइनस 20k इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा मुझे इसका ए बार डॉट एन बार ए बार इज दिस 2i 2j k 2i plus 2j plus k dotted with 12i plus 16j minus 20k. So that will give me 12 to the 24, 32 minus 20. तो ये बचेगा 4, 36. So this is r bar dot 12i plus 16j minus 20k. अगर चाहिए तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं थ्रू. So this will become r bar dot 6i plus 8j minus 10k. अरे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से जा सकता है. तो क्या आएगा ये 3i plus 4j minus 5k is equal to 9. This is the required equation of the plane. क्वेश्चन नंबर 27. अगर आपको उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन रहेगा 3x plus 4y minus 5z is equal to 9. 3x plus 4y minus 5z is equal to 9. C is the answer. Please check whether this is clear to you all. Please check whether this is clear to you all. Any doubts about this? Question number 29 and 30. Same as that of question number 27. 29 wala. The direction ratios of the normal to the plane passing through the points 1, minus 2, 3. And second point is minus 1, 2, minus 1. And parallel to the line. Parallel to the line. ये एक लाइन है कुछ ऐसा एक लाइन है. This line is parallel to this plane. इस प्लेन को पैरेलल है. ठीक है. इसके डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, 4. x minus 2 अपॉन जो लाइन है वो दिया x minus 2 अपॉन 2 y plus 1 अपॉन 3 z अपॉन 4. तो नेचुरली इस लाइन के ये होंगे डायरेक्शन रेशियो जो मैंने यहाँ पर लिखे. मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल. ये जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज. तो मैं बोलूँगा भाई ये है तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर जिसे मैं b1 बार बोल देता हूँ. दैट इज इक्वल टू a बार -1 minus 2r 2 plus 2 4j and -1 minus 3 minus 4k. ये होगा. ठीक है. और ये है दूसरा. सो दिस इज b1 बार एंड b2 बार क्या होगा. ये रहा b2 बार. b1 बार एंड b2 बार इज 2i plus 3j plus 4k. अब देखिए मैं इसे पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ उठा के यहाँ पे. इसको मैं ऐसा उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ. देखिएगा उसे. आई कैन शिफ्ट b2 बार नीचे या तो फिर ये b1 बार है उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ. ऐसा तरीका मतलब इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो भी एक ही बात हो जाएगी या इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो भी. तो इन बोथ दिस केसेस एनी ऑफ दिस केसेस आई कैन शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलल. इसको मैं शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर मुझे उसका क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा n बार. n bar will be the cross product of this. So what is n bar? n bar is equal to b1 bar cross b2 bar. तो वहाँ से मुझे उसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा i j k. b1 bar is -2 4 -4 and b2 bar is 2 3 4. तो यहाँ से मुझे उसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे. So that is equal to I minus j plus k. मतलब 16 plus 12 28 minus 8 plus 8 0 minus 6 minus 8 minus 4. So this is 28i plus 0j minus 14k. I think I can divide this by 14 क्योंकि मुझे डायरेक्शन रेशियोज चाहिए. तो डायरेक्शन रेशियोज are 28 0 and minus 14 और I divide it by 14. So this will become 2 0 minus 1. So direction ratios of the normal are proportional to 2 0 minus 1. D is the answer.
समझ में आ गया सबको? इज दिस क्लियर? प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू। हेलो, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट, प्रीवियस दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए 27 और 29 उसी टाइप का। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 1, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A 2 3 1 and B 4 minus 5 3, 4 minus 5 3, okay, and parallel to x axis। तो ये है हमारा प्लेन, तो this plane is parallel to x axis, x axis को पैरेलल है, ठीक है। x axis को अगर पैरेलल है, पैरेलल टू x axis में बोलेगा तो ऐसा। तो x axis के डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल्स ऑफ x axis, एंगल मेड बाय x axis विद इटसेल्फ 0 90 90। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? cos 0 1 0 0, और डायरेक्शन रेशियोज भी वही होंगे x axis के, समझे क्या? दीस आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x axis। अब मुझे इसका नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल होगा इस तरह से, ये होगा n बार। तो n बार इज गिवन बाय b1 बार क्रॉस दिस, ठीक है। I'll call this as b1 bar, I'll call this as b2 bar। तो b2 bar is what? b2 bar is nothing but I plus 0j plus k plus 0k, and b1 bar is 4 minus 2 2i minus 5 minus 3 minus 8j 3 minus 1 plus 2k। This is b2 bar, and n bar is equal to b1 bar cross b2 bar। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट इज n bar। n bar is equal to b1 bar cross b2 bar, और हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा? r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। a बार तो है यहाँ पे मेरे पास, तो n बार फाइंड आउट करने की देरी है, दैट इज इक्वल टू i j k b1 बार इज 2 minus 8 2 and b2 bar 1 0 0। So this will become I minus j plus k, so I into 0, j into minus 2, k into 8, so this will become 0i plus 2j plus 8k। this is n bar। तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, दिस विल बिकम r bar dot n bar, that is 0i plus 2j plus 8k is equal to a bar 2i plus 3j plus k is dotted with 0i plus 2j plus 8k। Take the dot product, this will become dot product अगर लेगा तो क्या बन जाएगा? This will become 0 plus 3 to the 6 plus 8 14। I'll divide throughout by 2, तो ये बन जाएगा r bar dot 0i plus j plus 4k is equal to 7। अब ये कार्टेशियन में दिया है, ये कैसे दिया है? दिस इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ओपन कर लो इसको, सो दिस बिकम 0x दैट इज y plus 4z is equal to 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सो B is the answer here। Please check whether this is clear to you, and take the screenshot please।